Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 25th of December 2020, Friday. Inspiration of the day is continuous improvement is better than delayed perfection. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. Oak Tree Piramal Race offers for DHFL yet again. पिछले कुछ वीक से DHFL की जो डील है दैट इज कंटिन्यूअस इन न्यूज़. पहली बार न्यूज़ तब आई थी जब ओक ट्री ने ऑफर दिया था डीएचएफएल को खरीदने के लिए. दोबारा न्यूज़ आई थी जब ओक ट्री ने अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट करी थी कि जो फॉरेन बिडर्स हैं उनके अगेंस्ट कोई भी पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए इनटू दिस bidding process, into this selling process. After that, yesterday we have discussed about the violation of the rules or the FDI threshold in DHFL deal because of its insurance arm, and today again DHFL deal is in news because of the revised offer by its two bidder, that is Oak Tree and Piramal. So the competition to acquire the DHFL has become more intense. Why? Because the two main bidder of this process have revised their offer. While Piramal offer rupees 2000 crore more, and US based asset management firm is offering 1700 crore rupees more. So now committee of creditor will start voting on this particular proposal after its legal team vet these two offers. Vetting means examine karna. So as per the industry sources, Oak Tree has increased its bid by 1700 crore to provide a net present value of total recovery for the lender at 36,410 crore, which included deferred payments plus the होल्ड amount of 1500 crore. तो यहाँ पर कुछ होल्ड amount भी दोनों जो बिडर्स हैं उन्होंने सेपरेट किया है. अगर हम देखें तो बेसिकली होल्ड बैक अमाउंट क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा. इट्स वेरी कॉमन टर्म. जब कभी भी कोई सेलिंग प्रोसेस होती है तो उसमें कुछ अमाउंट जो होता है वो जो बिडर होता है, जो बायर होता है, वो होल्ड कर लेता है. सेलर को देने से पहले कुछ अमाउंट होल्ड कर लिया जाता है. क्यों होल्ड कर लिया जाता है? जिससे कि जो सेलर है that complete certain outstanding contractual obligation if there is any obligation into the selling property, and once these obligations are fulfilled, the seller will release the holdback amount to the buyer will release the holdback amount to the seller. तो बायर ने कुछ अमाउंट होल्ड बैक कर लिया जितने की भी डील हुई थी. उस होल्ड बैक अमाउंट को तब सेलर को देगा जब सेलर अपने सारे कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरे कर लेगा. तो जितनी बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं उन सब में होल्ड बैक ऑप्शन होता है. तो फिलहाल के लिए जो ओक ट्री है उसने अप्रॉक्सीमेटली 1500 करोड़ का जो अमाउंट है वो सेपरेट कर दिया है एज अ होल्ड बैक ऑप्शन. वंस ऑल द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस आर फुलफिल्ड by the seller of DHFL, then the buyer will release, maybe Oak Tree, if Oak Tree wins the deal, will release this 1500 crore amount to committee of creditors. हालांकि जो पीरामल का ऑफर है उसमें ज़ीरो होल्ड बैक का ऑप्शन है. तो अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों ही केसेस में पीरामल का जो ऑफर है दैट इज लुकिंग मोर लुक्रेटिव इन कंपैरिजन टू ओक ट्री. ऑल दो जो ओक ट्री का जो ऑफर है, जो ओक ट्री एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसका जो ऑफर है वो ऑफर ओवरऑल अगर उसको एडिशन करें होल्ड बैक ऑप्शन को मिलाकर डिफर्ड पेमेंट्स को मिलाकर दैट इज मोर इन कंपैरिजन टू पीरामल ऑफर. बट पीरामल के केस में देयर इज अ ज़ीरो होल्ड बैक ऑप्शन. तो ओक ट्री कैपिटल ने जो ऑफर किया है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 36,410 करोड़ विद 1,500 करोड़ रुपीज एज अ होल्ड बैक, वेयर एज द पीरामल ऑफर्स 35,500 करोड़ हायर अपफ्रंट कॉस्ट और कैश विथ zero holdback option. Although Oak Tree's acquisition of DHFL insurance joint venture may further breach the FDI ceiling on insurance that we have discussed yesterday. तो जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है दैट मे सीक लीगल ओपिनियन, वो लीगल ओपिनियन ही करेंगे, डिस्कशन करेंगे, नेगोशिएशन करके देखें कि अगर ओक ट्री को ये ऑफर दिया जाता है तो जो एफडीआई का जो थ्रेशोल्ड ब्रीच हो रहा है इन केस ऑफ इंश्योरेंस उससे कैसे टैकल किया जा सकता है. व्हाट आर द
legal implications of it, whether it is possible to breach that FDI ceiling on insurance in this particular case or not. Those committee of creditors will do voting for these two new proposal. Apart from it, they will also seek the legal opinion on breach FDI ceiling in case of insurance stake. Apart from Oak Tree and Piramal, Adani Group is also into race, but its offer is far below than Piramal and Oak Tree's offer. So experts are saying that Adani Group is nowhere in the race. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 5. इकोनॉमी रिकवरिंग फास्ट, इन्फ्लेशन अ कंसर्न, आरबीआई. Into the December Bulletin of State of Economy report that is published by Reserve Bank of India, RBI has found that economy is recovering fast in comparison to the anticipated growth forecast or expectation, but still inflation is one of the very important point of concern into this third quarter of Indian economy. और इन्फ्लेशन को लेकर के हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो इस समय स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन में है, क्योंकि जिस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उस रेट से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बढ़ रही, उस रेट से हमारी डिमांड नहीं बढ़ रही. देन टू इन्फ्लेशन इज ऑन राइज, मोर स्पेसिफिकली CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. तो अभी रिसेंटली जो दिसंबर की जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है आरबीआई की स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट, उसमें आरबीआई ने भी एक कंसर्न शो किया है कि इकोनॉमी जो है वो रिकवर तो कर रही है क्वाइट गुड, बट इन्फ्लेशन जो पहले प्रॉब्लम थी पिछले कुछ मंथ्स में, या हम बोलें Q1 और Q2 में इन्फ्लेशन के जो इश्यूज थे वो इश्यूज अभी भी रिजॉल्व नहीं हुए हैं. द इंडियन इकोनॉमी इज पुलिंग आउट ऑफ COVID-19 डीप abyss is reflating at a pace that beats most predictions. जो predictions बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने किए थे फॉर इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ, उसके अकॉर्डिंग, उसके कंपैरिजन में इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग वेरी वेल. बट अगर इन्फ्लेशन भी इसी तरीके से बढ़ती रही तो दैट इज अ इशू ऑफ कंसर्न फॉर आरबीआई, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने से बहुत सारे ऐसे माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जिन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. तो हो सकता है कि इंडियन इकोनॉमी हाई इन्फ्लेशन की वजह से अगेन रिसेशन की तरफ मूव ऑन कर जाए. एंड एज पर द नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस नवंबर एंड रिलीज showed the pandemic imposed retrenchment seen in Q1 as much shallower than Q2. And as per the fourth bi-monthly monetary policy in December, that also projected the economic growth to be 200 basis point higher than what it had predicted in the month of अक्टूबर. तो आरबीआई भी अपने जो प्रोडिक्शंस हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के उसको रिवाइज कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ द करंट इकोनॉमिक पेस. यहाँ पर 200 बेसिस पॉइंट्स दिया है, इसका मतलब 2%, 2 पॉइंट्स, 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट. तो यहाँ पर 200 बेसिस पॉइंट दिया है, इट मीन्स जो भी रिविजन था उससे 2% ज़्यादा. And it is said that economy will clock at a growth rate of 14.2% in the first half financial year 21-22 on the top of 0.4% in the second half. And this is the projection of growth by MPC resolution, year on year growth in terms of percentage. और NSO RBI दोनों की ही प्रोजेक्शन का कंबाइंड है. दैट डार्क line indicates the NSO estimates and the light line indicates the October 22 and December 22 projections more specifically. तो जैसा कि हम देख सकते हैं -23.9% GDP कॉन्ट्रैक्ट की थी into the first quarter of financial year 21. और उसके बाद हम देख रहे हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे इकोनॉमी अब ग्रोथ की पाथ पे रिकवर हो रही है, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कम होता जा रहा है. एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट इनटू द Q1 ऑफ financial year 22 the economy may grow with the rate of 21.9% on year growth basis. जैसा कि हम देख सकते हैं Q1 जो फाइनेंशियल ईयर 20 का था उसमें 5.2 से लेकर के फिर shortfall देखा because of the pandemic, and then Indian economy has start recovering and it will continue its recovery path at least till financial year 22 Q1. So on the basis of these estimates RBI is
quite positive about the economic recovery, but inflation, controlling the double digit inflation, more specifically in case of consumer price index, is one of the very important concern for RBI. Apart from this news, one survey that is done by RBI on India's bank lending, and according to that survey the loan demand is on rise. अगर आपको याद हो तो कल भी हमने डिस्कस किया था कि सिबिल ने ये कहा है कि आगे आने वाले टाइम में कुछ टाइम तक जो रिटेल क्रेडिट ग्रोथ रेट है वो कॉरपोरेट क्रेडिट ग्रोथ रेट से ज़्यादा इंक्रीज करेगी और होम लोन जो है वो लीड करेंगे लेंडिंग को. As per the RBI survey also, the loan demand is on rise. Bankers' sentiments on lending condition shows the improvement. And if you have remember, at the time of GDP contraction, we have discussed about the news that the credit growth rate is on negative path. But as per the current survey, the loan demand is on increase and it started increasing. And if we see the sector-wise loan demand, there is a variation in agriculture, manufacturing, service and retail. Although retail credit growth rate तो सिबिल के अकॉर्डिंग, जो सिबिल ने सर्वे किया था उसके अकॉर्डिंग रिटेल क्रेडिट ग्रोथ रेट तो बढ़ेगी एंड मोर स्पेसिफिकली होम लोन्स बहुत तेज़ी से इंक्रीज होंगे, होम लोन्स की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ेगी. अपार्ट फ्रॉम इट, this is the data of quarter 3 of financial year 20, quarter 4 of financial year 20, quarter 1 of financial year 21, quarter 2 of financial year 21 and quarter 3 of financial year 21. तो approximately 5 quarters का data दिया हुआ है and this light bar indicates the agriculture, slight dark bar indicates the manufacturing sector, then again light bar indicates the service and the darkest bar indicates the retail. तो अगर हम एक एक सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्वार्टर 3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 में जो डिमांड है दैट इज 37.0, जो क्वार्टर 4 में डिक्रीज होकर 32.1 आ जाएगी. देन इट विल अगेन इन डिक्रीज इनटू द क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 दैट इज 24. बट आफ्टर क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 it has started increasing and it reached to 35.4. Then in quarter 3 of financial year 21, 39.6 in terms of expectation for the next year quarter, and that figure is on percentage. Same with manufacturing. Quarter 3 में it was 34.0, then quarter 4 of financial year 20, 34.6, then it again decreased significantly into the quarter 1 of financial year 21, that is 12.5. Then again it started increasing. Quarter 2 32.6, quarter 3 39.6. Same pattern is followed by service sector and the retail one. तो ये जो क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 दैट इज द पैंडेमिक पीरियड, और इस पीरियड में जो लोन डिमांड रही है इन चारों सेक्टर में एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, रिटेल, इन सब में बहुत डिसिमल डिमांड रही है. But as per the recent survey by RBI, this loan demand is going to increase into the upcoming quarter, that is quarter 2, quarter 3 में increase हुई है ना, it will increase and it will increase in upcoming quarters as well. And why we are discussing this loan demand or credit growth rate? क्योंकि किसी भी इकोनॉमी में अगर लोन डिमांड बढ़ रही है, क्रेडिट इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट की ग्रोथ रेट बढ़ रही है, इट्स सिंपली इंडिकेटिंग दैट देयर इज अ डिमांड इन द इकोनॉमी, देयर इज अ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, इन्वेस्टर्स एंड पब्लिक इज क्वाइट सर्टेन अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द फ्यूचर ऑफ इकोनॉमी इज ऑन पॉजिटिव नोट. सो अगर एज पर RBI सर्वे अगर डिमांड बढ़ रही है लोन की तो इट इज़ अ पॉजिटिव इंडिकेटर फॉर इंडियन इकोनॉमी आफ्टर पैंडेमिक setback. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 5. रोबस्ट गवर्नमेंट कैपेक्स क्रूशल फॉर रिकवरी बुलेटिन. अभी हमने डिस्कस किया लोन डिमांड बढ़ रही है, इकोनॉमी रिकवर हो रही है, GDP ग्रोथ रेट बढ़ रही है. एज पर द बुलेटिन, efforts by policymaker to open up rupee corporate bond sales to more investors took a step forward during the pandemic as borrowers shunned tighter regulation in the public market in a record dash for funds. तो गवर्नमेंट और बहुत सारे जो मंथली बुलेटिन पब्लिश होते हैं, चाहे वो RBI के हों, चाहे वो किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हों, ऑल आर एंटिसिपेटिंग
economic recovery. And as per the RBI bulletin, robust government capital expenditure is required if government wants to recover the economy. और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कोविड-19 के ड्यूरेशन में चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से PSUs, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, सब ने इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के जो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्लान से उनको डिफर कर दिया था फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. क्यों डिफर कर दिया था? क्योंकि इस पर्टिकुलर पैंडेमिक के सिचुएशन में इकोनॉमी वॉज नॉट अ ग्रोइंग वन. उस समय GDP कॉन्ट्रैक्शन चल रहा था, इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी थी. पब्लिक को, गवर्नमेंट को, इन्वेस्टर्स को दे आर एक्चुअली नॉट वेरी सर्टन अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ. उन्हें ये भी नहीं पता था पब्लिक को कि आगे आने वाले टाइम में कब तक ये कोरोना वायरस चलेगा, कब तक ये लॉकडाउन रहेंगे, कब तक ये पैंडेमिक रहेगा, जिसकी वजह से कई सारे जो आपने पढ़ा भी होगा रिवर्स लेबर माइग्रेशन हुआ था, डिमांड सबड्यूड हो गई थी, बहुत सारी अनसर्टेनिटी सप्लाई चेन से वो डिस्टर्ब हो गई थी. उस वजह से गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने, सब ने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्लान को डिफर कर दिया था फॉर नेक्स्ट ईयर. बट अब जो बुलेटिन एज पर द RBI बुलेटिन, एज पर द नंबर ऑफ एक्सपर्ट, बहुत सारे एक्सपर्ट भी इस बात को कह रहे हैं कि जिस तरीके से इकोनॉमी रिकवर कर रही है, इट इज़ अ राइट टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू गो फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर. और जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपेंडिचर फॉर कंस्ट्रक्शन. और अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस भी किया था कि बजट, जो प्री बजट डिस्कशन चल रहा है, उसमें जो कई सारे इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज हैं, एक्सपर्ट्स हैं, दे आर डिमांडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट गवर्नमेंट शुड इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन. क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर्स होते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर में या कंस्ट्रक्शन में कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विल इंक्रीज द इनकम इनटू द हैंड ऑफ पब्लिक. पब्लिक के हाथ में पैसा होगा, दैट मे लीड्स टू जनरेशन ऑफ डिमांड. इकोनॉमी में डिमांड होगी, देन अगेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज विल स्टार्ट. प्रोडक्शन, जो प्रोड्यूसर्स हैं, दे विल गेट द इंसेंटिव फॉर देयर प्रोडक्शन, दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, डिमांड अगेन जनरेट होगी. जब प्रोड्यूसर कंपनीज प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगी, फिर अगेन एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एंड दिस वर्चुअस साइकिल विल गो ऑन एंड इकोनॉमी विल रिकवर. तो एज पर द रिसेंट बुलेटिन ऑफ RBI, if private sector is not doing the capital expenditure, it is up to the government, that government should increase the capital expenditure and should focus on infrastructure and construction sector, so that multiple benefits can be arised from that expenditure. अगर इजी पब्लिक के हाथ में हेलीकॉप्टर मनी दे दिया जाएगा, इजी मनी दे दिया जाएगा, तो क्या होगा कि एक बार में डिमांड बढ़ेगी, वो डिमांड फिर अगेन पब्लिक जो मनी है उनके हाथ में वो खर्च कर देंगे, देन अगेन डिमांड विल बी सबड्यूड. बट इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन केस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर, दिस पर्टिकुलर डिमांड विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर, कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर, ये लॉन्ग टर्म के एक्सपेंडिचर होते हैं और दे जनरेट द रिजल्ट्स इनटू लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म में डिमांड को बूस्ट करने से इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा रिवाइवल देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि हमने अभी देखा भी अपने फेस्टिवल सीजन में. फेस्टिवल सीजन में बहुत ज़्यादा डिमांड हुई, बट अगेन द डिमांड इज सबड्यूड. तो शॉर्ट टर्म जो भी measures लिए जा रहे हैं as per the RBI, that are not going to benefit the economy, but government should increase its capital expenditure into the half yearly or quarter 1 or 2 of the upcoming financial year as per the RBI. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 6. IDBI बैंक stake sales in limbo as government faces legal hurdle in exit. जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, कोविड-19 की सिचुएशन में जो गवर्नमेंट के रिवेन्यू कॉफर्स थे वो पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं, क्योंकि टैक्स जो रिवेन्यू कलेक्शन था वो भी फॉल किया है. तो उस समय गवर्नमेंट ने पैंडेमिक की वजह से भी, और अगर आपको याद हो तो इस साल का जो बजट रहा है हमारा फाइनेंशियल ईयर में, जो बजट प्रेजेंट किया गया था, उसमें भी गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस किया था. और जो स्ट्रैटेजिक सेल के थ्रू जो डिफरेंट सेक्टर्स में गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनकी सेलिंग का भी प्रपोजल था, और उनकी सेलिंग के थ्रू रिवेन्यू कलेक्शन को लेकर के कुछ टारगेट सेट किए गए थे. बट बिकॉज ऑफ
पैंडेमिक ऑल दो सेल वर्स गोज इनटू लिम्बो। तो जो भी सेल गवर्नमेंट ने, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर में हो, चाहे वो कोल सेक्टर में हो, चाहे वो बैंकिंग में हो, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि जितने भी जो नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं गवर्नमेंट वहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट हटा लेगी या वहाँ से डिसइन्वेस्टमेंट पर जाएगी। गवर्नमेंट केवल कुछ और कुछ स्ट्रैटेजिक सेक्टर में ही अपना इन्वेस्टमेंट रखेगी। और इसी के लिए स्ट्रैटेजिक सेल के टारगेट डिसाइड किए गए थे इस फाइनेंशियल ईयर में। स्ट्रैटेजिक सेल से कितना रिवेन्यू कलेक्शन होगा उसके भी टारगेट डिसाइड किए गए थे इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, बट कोविड-19 की वजह से बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। अगर मोर स्पेसिफिकली बात करें आज की न्यूज़ की, तो आज की न्यूज़ में आईडीबीआई बैंक को में जो गवर्नमेंट अपना स्टेक सेल करने वाला था उसको लेकर के कुछ लीगल हर्डर्स जनरेट हो गए हैं। द गवर्नमेंट इज फेसिंग लीगल चैलेंजेस in exiting IDBI Bank, and it might have to repeal the same legislation under which IDBI was incorporated as bank. But annulling it could have leave the lender without a banking license. तो अगर बहुत टेक्निकल डिटेल्स में ना जाए, मैं आपको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से समझाऊं तो बेसिकली जो आईडीबीआई है दैट इज़ अ डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन। अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस भी किया था कई बार। लेटर ऑन इट वाज कन्वर्टेड इनटू अ फुल फ्लेश बैंक, बट एज पर द एग्जिस्टिंग बैंक जो गवर्नमेंट है वो अपने फुल स्टेक सेल नहीं कर सकती है। जो भी स्टेक सेल करने, जो एग्जिट करने की बात गवर्नमेंट कर रही है इस आईडीबीआई बैंक से, तो जो करंट लेजिस्लेशन है उसके अकॉर्डिंग बैंक का इतना पोर्शन सेल या इतना स्टेक सेल नहीं किया जा सकता, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्टेक जो है वो सेल नहीं किया जा सकता। तो अब गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन है, या तो गवर्नमेंट ये करे कि जो लेजिस्लेशन उसने पास किया था आईडीबीआई को बैंक में कन्वर्ट करने के लिए, उस लेजिस्लेशन को रिपील कर दे, आईडीबीआई को बैंक ना रहने दे। बट अगर गवर्नमेंट ये करती है तो जो लेंडर है वो रह जाएगा विदाउट अ बैंक लाइसेंस। तो फिर उसके लिए उसको प्रॉपर सेलर नहीं मिलेंगे, प्रॉपर बिडर नहीं मिलेंगे, ऑप्शंस नहीं आएंगे। तो एक्सपर्ट का ये कहना है कि बिकॉज ऑफ दिस हर्डल हो सकता है गवर्नमेंट अपना पूरा इंटायर जो स्टेक है इनटू आईडीबीआई बैंक वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक सेल कर दे। बट फाइनेंस मिनिस्ट्री जो करंटली आरबीआई से बात कर रही है कि व्हाट आर द मेजर चेंजेस, व्हाट आर द चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड इन द लेजिस्लेशन सो दैट गवर्नमेंट एक्चुअली कुड सेल इट्स 47% stake into IDBI without repealing the legislation under which IDBI was incorporated as bank. So government is in consultation with RBI on whether the proposed sale require amendment or repeal of Industrial Development Bank Act 2003 or not. तो let's see, हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा कि IDBI में जो 47% का गवर्नमेंट अपना स्टेक सेल कर रही है, क्या वो गवर्नमेंट सेल कर पाती है विदाउट रिपीलिंग द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक एक्ट 2003। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। इंडिया चैलेंज वोडाफोन टैक्स रूलिंग इन सिंगापुर। फाइनली इंडियन गवर्नमेंट हैज गॉन फॉर arbitration into Singapore court, as we were expecting that after the KNPLC government may go against this order of arbitration court at Hague. So finally government has challenged in Singapore and International Arbitration Tribunal verdict overturning its demand for rupees 22,100 crore in back taxes from Vodafone Group PLC. नंबर ऑफ जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पीपल अवेयर है मैटर से, उनका ये कहना है कि मैक्सिमम टाइम ऐसा देखा गया है कि सिंगापुर की जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है उसमें जो भी वर्डिक्ट आते हैं, जो भी अवार्ड्स आते हैं वो थोड़ा सा गवर्नमेंट के फेवर में आते हैं। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ऑलवेज चूज टू गो फॉर सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल रादर देन एनी अदर आर्बिट्रेशन कोर्ट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। AAI raises objection to Adani branding in private airports. The Airport Authority of India, the state-owned airport operator, has objected to Adani Enterprises using its brand name into 3 airports, that is Mangalore, Lucknow and Ahmedabad, जो कि रिसेंटली अदानी ग्रुप ने 2 मंथ पहले एक्वायर किए थे इनटू द प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस, जिसमें कई सारे जो एयरपोर्ट्स हैं उनको लेंड कर दिया है गवर्नमेंट ने फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू मेंटेन और फॉर मेंटेनेंस पर्पस। तो उन पर्टिकुलर एयरपोर्ट्स में जो अदानी ग्रुप है दैट इज एक्चुअली ब्रांडिंग themselves or their
मैनेज्ड एयरपोर्ट एज प्राइवेट एयरपोर्ट। तो उसको लेकर के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऑब्जेक्शन रेज किया है। एज पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, this violate the concession agreement agreed upon the group and the operator. Why? Because this agreement mandates that the airport should not be branded in a manner that identified the company और इट्स शेयर होल्डर्स। इसमें क्लियरली मेंशन किया था कि कंपनी ऐसा कोई भी ब्रांडिंग एयरपोर्ट में नहीं करेगी जिससे कि जो पब्लिक है, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, वो आइडेंटिफाई कर सकें कि दिस पर्टिकुलर एयरपोर्ट इज मैनेज्ड बाय इट्स कंपनी और अ पर्टिकुलर कंपनी। एंड इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द ब्रांडिंग ऑफ एयरपोर्ट इज नॉट बीइंग carried out in accordance with the concession agreement and is the violation of agreement। और ऐसा देखा गया कि जितने भी जो एयरपोर्ट्स हैं, मैंगलोर, लखनऊ, अहमदाबाद, उस इन सभी एयरपोर्ट्स में अदानी जो ग्रुप है उसने नेम स्टिक कर रखा है दैट अदानी एयरपोर्ट्स। तो जितने भी डिस्प्ले बोर्ड हैं उसमें अदानी एयरपोर्ट्स के नाम से डिस्प्ले है, जिसको लेकर के जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चीफ हैं, दे विल टॉक विद द रिस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अदानी ग्रुप। अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर जो कॉम्पिटिटिव बिडिंग हुई थी उसमें अदानी ग्रुप ने 6 एयरपोर्ट जीते थे, जिसमें 3 तो मैंगलोर, लखनऊ, अहमदाबाद हैं। बाकी 3 के नाम आप आज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। नेम द 6 एयरपोर्ट्स दैट actually won by Adani Group last year competitive bidding process। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। फ्लिपकार्ट रीबिल्ड्स बोर्ड टू मेक वे फॉर आईपीओज। तो फ्लिपकार्ट ने अपने रिसेंटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो कॉम्पोजिशन है उसमें चेंज किया है। वाई? बिकॉज फर्म इज एक्सपेक्टेड टू गो फॉर पब्लिक ऑफर एट अ वैल्यूएशन ऑफ $40 to 50 बिलियन। तो बोर्ड में, अक्रॉस बोर्ड में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। कुछ मेंबर्स को इन किया गया है, कुछ मेंबर्स को आउट किया गया है, जैसे कि बोर्ड का कॉम्पोजिशन अच्छा हो जाए और जो फ्लिपकार्ट का अपकमिंग आईपीओ है उसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिले फ्लिपकार्ट को। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, किसको इन किया, किसको आउट किया, बस इतनी न्यूज़ इज मोर देन सफिशिएंट दैट फर्म और द फ्लिपकार्ट रीबिल्ड्स इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और रीबिल्ड्स इट्स बोर्ड इन ऑर्डर टू मेक द वे फॉर आईपीओ। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडस्ट्री लॉबी सीक्स क्लैरिटी ऑन ड्राफ्ट रूल्स अंडर लेबर कोड्स। तो जो रिसेंटली पिछले कुछ 1-2 साल से जो लेबर लॉज में थोड़े चेंजेस हुए हैं, इनको कोडिफाई कर दिया गया है, 4 कोड्स में डिवाइड कर दिया गया है और धीरे धीरे एक एक करके सारे कोड पास हो चुके हैं। तो अब उन कोड्स के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के जो इंडस्ट्री है वो क्लैरिटी सीख कर रही। क्यों? क्योंकि जो मिनिस्ट्री है, लेबर मिनिस्ट्री, उसने अब इस पर्टिकुलर लेबर कोड के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के रूल ड्राफ्ट्स किए हैं और रूल्स में क्लैरिटी नहीं है। दैट इज़ वाई इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज, इंडस्ट्री एसोसिएशंस आर सीकिंग क्लैरिटी और क्लैरिफिकेशन ऑन द ड्राफ्ट रूल्स ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन अंडर दीज 4 लेबर कोड्स। तो आज का आपका सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे व्हाट आर दोज 4 लेबर कोड दैट हैज बीन रिसेंटली पास्ड। क्या क्या उनके नाम है और उसमें अप्रॉक्सीमेटली कितने लेबर लॉ सब्स्यूम्ड हुए हैं। सो इन अ मीटिंग विद द लेबर मिनिस्टर संतोष कुमार गंगवा, द CII wanted to know whether wages could be or would be include contractual or productivity linked bonus or not। There are सर्टेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अभी तो सिर्फ एक क्वेश्चन है कि क्या जो वेजेस हैं उनको प्रोडक्शन लिंक्ड, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस में इंक्लूड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। मोर स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन है इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ के, वो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स को लेकर के हैं, ऑन डिमांड वर्कर्स को लेकर के है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स को लेकर के है। तो जब कभी भी कोई एक्ट पास होता है और वो जब एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाता है तो पर्टिकुलर कंसर्न मिनिस्ट्री उस पर रूल्स बनाती है, जिससे उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही जो कोई भी एक्ट होता है वो इम्प्लीमेंट होता है। क्योंकि एक्ट में तो बहुत लीगल लैंग्वेज दी होती है, दैट इज़ नॉट एक्चुअली अंडरस्टैंडेबल बाई अ सिंपल मैन और सिंपल ऑर्गेनाइजेशन और कॉमन मैन। तो इसके लिए रूल्स जो होते हैं बहुत सिंप्लीफाइड करके बताए जाते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग काम करना है। एंड इफ कंपनी इज वर्किंग और द इंडिविजुअल इज वर्किंग अगेंस्ट दोज रूल, दैट इज द वायलेशन ऑफ पर्टिकुलर एक्ट। तो लेबर कोड्स को लेकर के जो रूल्स ड्राफ्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि लेबर कोड को लेकर के ऑलरेडी बहुत कन्फ्यूजन है इंडस्ट्री में भी और अमंग द लेबर और ट्रेड यूनियंस में भी। तो उसको लेकर के कई सारे क्लैरिफिकेशन मांगे हैं इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ ने। तो आप देखते हैं कि इस पे आगे गवर्नमेंट क्या
डिसीजन और क्या क्लैरिफिकेशन लेकर के आती है, एंड व्हाट आर द मेजर क्वेश्चंस दैट आर रेज्ड बाय इंडस्ट्री एसोसिएशन और इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज. So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook. I use the Mumbai edition of Business Standard. And if you have any query and suggestion, please write on comment section below. Like, share, and subscribe. Thank you.